اچھا ایسے کریں چیف جسٹس صاحب کو کہیں کہ تمام ادارے بند کر دیں, پولیس کو بند کر دیں, نیب کو بند کر دیں. اگر شہید بی بی صاحبہ کا ٹرائل نیب کر سکتی ہے, اگر ہمارے وزیر اعظم گیلانی صاحبہ کر سکتی ہے تو ان کا کیوں نہیں کر سکتی بھائی؟ وہ کوئی اوپر سے کیا چیف جسٹس اتحاد صاحب کا بیٹا ہے اس لیے تو ان کو ضرور کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آپ کے تو منسٹرز پہ کیسز ہیں, رضوان افتخار کے وکیل نہ بنے, مسلم لیگ نون بیلٹ کا کردار ادا نہ کرے عدلیہ کا. آپ عدلیہ کا بیلٹ کا کردار ادا کریں. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے منسٹرز کے بعد کے پرائم منسٹر کے بچوں کے اوپر کیسز ہیں, پہلے وہ تو ناپسند ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کو پسند ہے. آپ تینوں سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں پبلک انٹرسٹ کے لیے, کیا پبلک کے لیے کوئی میٹر کرتا ہے یہ کہ وہ پوچھیں ارسلان افتخار کون ہے کون نہیں ہے, ان کے خلاف جو کیس چل رہا ہے اس میں کمیشن ٹھیک بنا نہیں بنا؟ کیوں نہیں دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں اتنی نہ بڑھاتی ہیں, بجلی ہر گھنٹے بند ہو رہی ہے, یہ کہہ رہے ہمیں ارسلان افتخار کا ایشو ہے. دیکھیں ہر گھنٹے میں عوام کا سانس گھوٹ رہے ہیں. جیسے صاحب کا بیسٹ فرینڈ ہے بے شک, اور وہ تو بالکل غلط بات ہے. دیکھیں یہ کس طرح کی سٹیٹمنٹس ہے, یہ کوئی پارلیمنٹیرینز کی طرف سے ریسپانسبل سٹیٹمنٹس ہے. شعیب صدر ایک آفیسر افسر ہے, وہ انویسٹیگیشن کرے گا. شجاعت حسین اور پرویز الہی, شجاعت حسین مجھے قتل کرا دیں گے, اس کے بعد چیف نے کہا کہ تم ہی پرویز الہی کا وکیلوں سے ویسے ہی ڈالنا کہ وکیل کرتے ہیں, آپ اپنے مسائل لے کے آپ تو سپریم کورٹ کی طرف وقت دیکھتے رہتے ہیں. آج آپ نے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پارٹی میں بہت اتفاق ہے. شوکت بسرا صاحب سپریم کورٹ میں اتنی بڑی بڑی ایکشنز لانے نہیں پڑتی. اگر آپ بھی گزارش میری سن لیجئے کہ مسائل کے حل نہیں ہوئے تو یہ اس کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرتا, آپ بھی نہیں قبول کرتی, دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی بھی قبول نہیں کرتی, پاکستان مسلم نواز بھی کہتے ہیں جی وفاق نے یہ کیا, وفاق کہتا ہے صوبے نے یہ کیا. کوئی تو ذمہ داری قبول کرے تاکہ یہ بات کسی طرف جا کے کھڑی ہو, تاکہ عوام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور ان کے ماتھے پہ جو پسینہ ہے اس کو کوئی پہنچ کر بات کرے کہ ہاں جی ہم آپ کے مسائل کے توجہ دیتے ہیں. اس پر میں آپ کا جواب ضرور لوں گا جی. اس سے پہلے ہمیں لینا ہے وقفہ, وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی. ناظرین وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی کے سیشنز اور وہاں پر ہنگامہ آرائی مچھلی بازار کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے. ایسا کیوں اور آخر کب تک؟ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سمینہ صاحبہ ہیں, اسلام آباد میں مائزہ حمید صاحبہ ہیں, اور شوکت بسرا صاحب ہیں. وقفے سے پہلے جو میں نے بات کی تھی وہیں سے ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں. سمینہ صاحبہ, آپ کی نظر میں اب ایک دوسرے پہ الزامات بہت لگتے ہیں. پاکستان مسلم نواز پیپلز پارٹی کو کہتی ہے, پیپلز پارٹی پاکستان مسلم نواز کو کہتی ہے, پاکستان مسلم کاف بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم نواز کی طرف اشارے کر کے اور ان پر الزامات کی بارش کی جاتی ہے, اور پھر اور دیگر اپوزیشن میں بھی یہی چل رہا ہوتا ہے. اور لگتا یوں ہی ہے, اور عوام سن کے ان کے کان پک چکے ہیں, تنگ آ گئے ہیں کہ جی سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جی سب غلط ہیں, اور سبھی اپنے آپ کو ٹھیک بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. کوئی تو خدا را اپنی ذمہ داری قبول کرے. دیکھیے علی, امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت سے اختیارات صوبوں کو آ چکے ہوئے ہیں, ہر کوئی اپنا جواب دے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. فیڈرل اپنا جواب دے ہے, صوبہ پنجاب پاکستان کا 65% ہے وہ جواب دے ہے. میرے خیال میں علی بہت سی باتیں ہیں. ریونیو جنریٹ تو پنجاب نے بھی کر رہا تھا, جی ڈی پی ریٹ پنجاب کا آج 8.5 تھا جب ہم نے دیا تھا, آج 2.5% ہوا ہے. تو جب انصاف نہیں ہوگا نا علی, جب ایک سے حقوق نہیں سب کو ملیں گے, جو انصاف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہی انصاف میرے ساتھ ہوگا نا, تو ہر چیز سموتھ ہو جائے گی. چیف جسٹس کے بیٹے کے ساتھ کچھ انصاف ہو رہا ہے. ملک ریاض نے فیصل میمن سے ہاتھ ملایا تھا تو انکوائری چینج کرا دی گئی تھی. تو آج ارسلان کے کہنے پہ انکوائری ہر طرف جاری ہے, صرف پنجاب میں ایسا نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں گے ہر طرف ہو رہا ہے, کراچی میں تو پنجاب میں نہیں ہو رہا, فیڈرل میں بھی ہو رہا ہے, چیف جسٹس کے بیٹے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. مونس الہی کے ساتھ کوئی انصاف ہوا, وہ باعزت بری ہوا, وہ ضمانت پہ نہیں رہا ہوا, وہ باعزت بری ہوا. اور اگر ارسلان تم مریخ سے اترے ہو, تم میں کیا ڈر ہے؟ تم اپنی انکوائری کراؤ, نیب تمہاری کر رہی ہے, بی بی جب وہ کیس ختم ہوگا اگر اس پہ غاب کو اعتراض ہوگا تو آپ بات کریے گا نا. انہوں نے اپنا سمجھ نہیں آ رہی, انہوں نے اپنا واپس دلوا دی. کمیشن ایک رکنی بنایا شعیب سڈل کو, شعیب سڈل جلد بازی کس بات کی,
सारे चाचे बचा लेंगे, अरसलान के सारे चाचे अरसलान को बचा लेंगे। और सिर्फ ये तो बोनस आएगा जिसके लिए ये ट्रायल, कोई तो जिम्मेदारी कबूल करे। काश के कोई ये जुमला कहे कि हाँ जी हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं, हमारी हुकूमत में गवर्नेंस का इशू है, लाकानूनियत है, कोई तो ये जुमला कहे, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं होता कि सबको ये होता है कि कल को जाके वोट लेने हैं लोगों से, तो हम ये कैसे मान लें टेलीविजन पे? वो तो अली बात ये है, आवाम डिसाइड करेगी कि गवर्नेंस का जहां पे इशू है वहां पे वोट नहीं मिलेंगे। जहां पे नेशनल, माइजा एक मिनट, जहाँ पे नेशनल इश्यूज हैं, नहीं बात मेरे से जवाब माइजा साहिबा को जरा जवाब, उनका जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी बारी पे बात जरूर देखें। गवर्नेंस का इशू तो जो है वो अब जो 6 महीने इलेक्शन को रह गए हैं वो लोग डिसाइड कर लेंगे कि गवर्नेंस किसकी बेहतर थी किसकी गलत थी। बात ये हो रही है कि पंजाब असेंबली में मैंने आपको बताया कि अगर सबसे ज्यादा वजीर आला को जितनी उनके सामने उनके ही इस जो पंजाब सूबे का सरबराह है उसकी सारी औरतों ने मुंह पे बेइज्जतियां की हैं असेंबली में और उनको गालियां निकाली हैं, इससे बड़ी जमहूरियत नहीं हो सकती। स्पीकर साहब सबसे पहले ऑपोजिशन के मेंबर्स को बोलने की इजाजत देते हैं, उसके बाद जो है वो जो ट्रेजरी बेंच के लोग हैं उनको इजाजत मिलती है। बात यह है कि अगर हम तरीके से असेंबली चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि लेजिस्लेशन होए और लोगों के मसाइल हल हो, तो उसमें ऑपोजिशन को हिंड्रेंस नहीं करनी चाहिए, ऑपोजिशन को हिंड्रेंस करनी चाहिए बाहर सड़कों पे जाके। असेंबली जो है ऐसा फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके दींगा मुश्ती करने से मसाइल हल नहीं होंगे। आपकी अपनी जमात में जितनी भी खवातीन हैं वो अक्सर खामोश रहती हैं। मुझे तो ये शक पड़ता है कि शायद वो सुन भी नहीं रहे होते कि क्या कानून साजी हो रही है, क्या पार्टिसिपेशन रहती है, क्या तहरीके इस्तेहकाक पेश होता है, ये तहरीके इल्तिफाक। आप मुझे बता दीजिए कब आपकी पार्टी की खवातीन की तरफ से तहरीके इस्तेहकाक या तहरीके इल्तिफा पेश किया गया, बता दीजिए। हमारी पार्टी की तरफ से रेगुलरली ये काम होते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह के ड्रामे नहीं करते हैं। हम इस तरह खवातीन के मैं यही तो कह रही हूँ, खवातीन की हमारी असेंबली की खवातीन काफी एक्टिव हैं ट्रेजरी बेंच से। बात ये देखिए, अगर मीडिया उस बात को उठाएगा कि एक औरत ने दूसरी औरत को जो से जूता मारा है, तो फिर तो जो से वही हाईलाइट होगी। हमारा मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। जब आपको लगता है कि ऑपोजिशन ने हमें ट्रेजरी बेंचेस में किसी ने गालियां दी हैं, मुझे बताएं कि जो हुकूमती अरकान असेंबली जो पंजाब में, देखिए शेख अलाउद्दीन साहब ने जो जुमले कहे खवातीन अरकान पंजाब असेंबली के हवाले से, क्या वो काबिल कबूल हैं किसी तरह से? क्या इखलाकियात की अगर हम बात की जाए तो क्या कोई अच्छी मिसाल कायम की उन्होंने? कैसी बात है, लोग सुनने वाले सुन रहे होंगे तो वो क्या मैसेज देंगे इस बात में? शौकत साहब जवाब ले लेने दीजिए, ये गलत हो जाएगा, जवाब पहले ले लेने। वो उनकी इररिस्पांसिबिलिटी थी एज अ मेंबर, हम लोगों ने भी उनको कंडेम किया था, हम लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई थी, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था मैटर को, और जिन लोगों जो लोग इस इशू में रिस्पॉन्सिबल थे उनको असेंबली से उस सेशन के लिए आउट कर दिया गया था। इससे ज्यादा जूतियां और एक दूसरे को मारने के बजाय अगर इस तरह की एक्शंस ली जाएं तो जो है मसला भी हल हो सकता है और असेंबली का जो काम है वो भी जो है उसमें रोक टोक नहीं हो सकती। बात यह है कि अगर आप एक दूसरे के ऊपर जूते मारना शुरू कर देंगे, औरतें एक दूसरे के दुपट्टे उतारना शुरू हो जाएंगी, तो सेशन तो नहीं चल सकता। सेशन चलने के लिए हर मेंबर को रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, हर मेंबर को अवाम का पहले सोचना चाहिए और पार्टी का बाद में सोचना चाहिए। इन लोगों को चाहिए कि अब सीरियस हो जाएं और इस हाउस को चलने दें, क्योंकि 6 महीने रह गए। आप लोग सीरियस हो जाएं, आप लोग सीरियस हो जाएं और साजिशें बंद करें। लुक हुज टॉकिंग। ये स्पीकर पंजाब असेंबली का घेराव करने की वजह क्या थी? क्योंकि वो प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, गालियां दी जा रही है, प्रोसीडिंग जल्दी बिल पास करवा रहे हैं अपना। लेजिस्लेशन होने नहीं देते ये लोग ऑपोजिशन के मेंबर्स। तो मेरा माइक बंद कर दिया गया वहां पर, जब स्पीकर पंजाब असेंबली पूरे हाउस के कस्टोडियन होते हैं, जब वो मुस्लिम लीग नून के स्पीकर बन जाएंगे, उन्होंने हमारी करारदाद को यू टर्न लिया और उस पे कोरम वहां पे मौजूद नहीं था। उन्होंने जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबे के हवाले से हमारे माइक बंद करा दिए। वहां पर देखिए जो स्पीकर होते हैं वो पूरे हाउस का स्पीकर होता है, और अगर कोरम पॉइंट आउट करेगा तो उस कोरम की गिनती होती है। कहीं भी खड़ा हो और वो कोरम को जो पॉइंट आउट करते हैं, इस तरह नहीं होता। अब
शौकत बसरा साहब एक इलेक्टेड मेंबर हैं, अगर उनको रूल्स ऑफ द हाउस नहीं पता तो मैं तो नहीं उनको समझा सकती। इनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इनको पता ही नहीं वहाँ क्या हुआ है। मुझे पता है, I was available, I was there, आप कोरम पॉइंट आउट करें। मुझे आप तीनों से एक सवाल पूछना है, मुझे आप तीनों से लड़ाई झगड़ा की खत्म कीजिए थी, हम माइक्रोफोन बंद नहीं करेंगे जिसका पंजाब असेंबली में शौकत बसरा साहब कहते हैं कि बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन खुदारा इस सवाल का जवाब आप तीनों से मुझे चाहिए। शौकत साहब आप ये बताइए कि जो हालात अभी पंजाब असेंबली में हम सेशंस में देखते हैं कि हो रहा होता है, मछली बाजार बना हुआ होता है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा होता है, एक दूसरे को बुरा भला गाली गलौच हो रहा होता है, क्या कल को आप अपनी फैमिली में या अपने बच्चों को आप कहेंगे कि सियासत की तरफ आओ, फैमिली की बच्चियों को आप कहेंगे कि सियासत की तरफ आओ? अली मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। बाय गॉड आप क्लिप निकाल लीजिए। जनूबी पंजाब के अवाम को गद्दार कहा गया, बहावलपुर के अवाम को गद्दार कहा गया, हमें गद्दार कहा गया, गालियां दी गई हमारी खवातीन को, बाकायदा राना सनाउल्लाह ने और बाकी लोगों ने गालियां दी। आप मुझे बताइए उसके बावजूद बात नहीं करने दी गई। यहाँ पर ये जो सवाए पंजाब असेंबली के बाकी असेंबली में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, क्या वजह है कि यहां पर ही पंजाब असेंबली के अंदर आए रोज हंगामा, आए रोज राना सनाउल्लाह की बदतमीजियां, आए रोज हमारी खवातीन को गालियां, और उसकी वजह यह है कि ऑपोजिशन तो है ही इधर, ऑपोजिशन तो है ही इधर, उसकी वजह से सूबों में कौन सी ऑपोजिशन है? कौमी असेंबली में हमने देखा है कि काफी हंगामा राय होती है, ये लोग हमने देखा कि कौमी असेंबली में ऐसा होता है, बाकी सूबों में तो ऑपोजिशन नहीं है, सिर्फ पंजाब में। भाई डिक्टेटरशिप की बात किया तो मायना आप है, आज भी आप मुझे मियां नवाज शरीफ साहब की वो स्टेटमेंट निकाल दें जब उन्होंने कहा था कि ज़िया-उल-हक के मिशन को आगे लेके बढ़ूंगा। आप लोग तो अभी ताजा जद्दा से आए हैं, आपने माजी से सबक नहीं सीखा, बादशाहों वाली आते शौकत साहब जल्दी से क्विकली जवाब दीजिए, प्रोग्राम को मैं वाइंड अप करना है। ये बताइए कि क्या आप अपने बच्चों को असेंबली मेंबर आप चाहेंगे आपके बच्चे या आपकी फैमिली से कोई जाए इस तरह के हालात में? अली मैं आपकी बात से ब्रीफली जरा मुख्तसरन जल्दी जवाब दीजिएगा और काबिल मुजम्मत रवैया। हां कि कोई जो ये डिक्टेटरशिप नहीं है, होता है असेंबली के अंदर, घुसने के लिए उनके कुछ तरीके भी सीख ले। हर बंदा असेंबली के अंदर घुसा हुआ है और वो जो है प्रोसीडिंग्स भी रोक लेते हैं, जूते भी मार देते हैं। ये आप लोग अपनी नई जनरेशन को बता रहे हैं कि ये इस तरह हाउस चलते हैं। जी सारे सियासतदान डिसओरिएंटेड हो गए इनकी हरकतों की वजह से। बोलने फिर मैं बताऊं, अगर आप शौकत साहब का इंतजार करेंगे चुप करने का तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अली जब इशू पर से ध्यान हटाया जाता है तो खवातीन को वहाँ गालियां दिलवाते हैं राना साहब और उनके गुंडे जो पाले हुए 4-5। बिल्कुल गलत बात है ये। वो गुंडे माइजा साहिबा जो मेंबर हैं हाउस के, एक मेंबर को दूसरे मेंबर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर बिल्कुल राणा साहब रिस्पेक्ट नहीं करते, माइजा राणा साहब रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं चलते चलते आपको ये दिखा दूं, ये देखेंगे अरसलान इफ्तिखार। अच्छा राणा आपको बहुत अजीज है, राणा सनाउल्लाह आपको मुबारक हो, इतना बदतमीज लॉ मिनिस्टर आपको मुबारक हो। ये देखिए अवाम को मैं दिखाना चाहती हूँ, ये ग्रेटेस्ट पासपोर्ट है अरसलान साहब का, ये देखिए ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, ये सरकारी पासपोर्ट अरसलान लेके फिरता है। अरसलान कौन है? मरीख से उतरा हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेटा है। जब इंसाफ एक सा नहीं होगा ना, पंजाब असेंबली नहीं नजर आ रही चीफ जस्टिस साहब को, उनको अपना बेटा बचाना है, उनका ध्यान इसकी तरफ है। ये जो गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं ना अरसलान, इसकी तरफ तवज्जो है चीफ जस्टिस साहब की। जब वो हटेगी पंजाब ठीक हो जाएगा। ली पंजाब हमारा ठीक हो जाएगा जब चीफ साहब वहां पर देखेंगे। उन्होंने अपना जो गुंडा है वो गुंडे पाला हुए, 4-5 गुंडे उसने पाले हुए, और राणा सनाउल्लाह गुंडा है, उसने 4-5 गुंडे पाले हुए असेंबली में। वो हमारी औरतों को गालियां देते हैं। राणा सनाउल्लाह ने हमारी औरत माजिदा जैदी को मार पड़वाई है अपने गुंडे आदमियों से और औरतों से। तो मैं ऐसे गुंडे आदमी को कहूंगी चीफ जस्टिस साहब आप सो मोटा एक्शन ली इस गुंडे के ऊपर, और ये जो हो रहा कर रहा है ना आपका बेटा, इस पर से ध्यान हटाएं चीफ साहब। इस ये जो मरीख से उतरा हुआ है ना आपका बेटा, इस पर से ध्यान हटाएं और आप प्लीज तवज्जो दें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आप तीनों में माइजा हमीद साहब आपका, शौकत बसरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन मैं आखिर में जो कंक्लूजन देने जा रहा हूं इस डिस्कशन से वो यही है कि इंसाफ की धज्जियां माजरत के साथ तीनों मौजूद मेहमानों के साथ कि इंसाफ की धज्जियां सभी की तरफ से उड़ाई जा रही हैं, और सच जो है वो कड़वा होता है। जब सच कहा जाता है तो यकीनन दूसरे को चुभेगा भी, और झूठ जो है वो कब तक बोला जाएगा, एक दिन बोला जाएगा, 2 दिन बोला जाएगा। ये सब जानते हैं और समझते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं।
تو یہ آخر ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کا یہ جھوٹ جو ہے وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا اور اپنے منطقی انجام کے بارے میں سوچئے. اور شاید ایک جھوٹ بولنے کی وجہ یہ بھی ہے عوام سے, ان عوامی نمائندوں کی طرف سے, کہ شاید ضمیر سو رہا ہے. ضمیر کو جگائیے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.